I would like to request our board members, Mr. Akhilesh Rathi, Ms. Shonali Paul, and our President C. Naveen Khandelwal ji to please come forward for the lamp lighting ceremony. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं This evening, I now invite C. Naveen Khandelwal, sir, President IMA, for the welcome address. Thank you, sir. Warm welcome to everyone to this wonderful evening. The evening has been designed for two purposes. Obviously, one is जब महाराज जी आने वाले थे तो हमने सोचा कि let's encash that opportunity और उनका आशीर्वाद लें. Ashirwad for what purpose? The purpose is very clear that we are coming up with our conclave that is scheduled on 27th and 20th of February, the 33rd International Management Conclave. Or each year when we start planning for the conclave, we do organize a program pre-conclave, and the purpose of the pre-conclave is to unveil the theme and build up the heat to the conclave. So that is why the two programs have been clubbed today, and today we'll be unveiling the theme of this particular conclave. But before that, I think everybody is part of IMA, and thanks to everyone for contributing to the IMA fraternity in terms of participating and also giving a lot of inputs for organizing the program throughout the year. In comparison to last year we did about 180 programs in 365 days, and this year we have crossed that particular 180 program by January end. So that means each second day we are organizing one program that covers school students, college students, corporates, individual members, entrepreneurs, startups, women, and everyone. Let us begin with the unveiling of the theme for our 33rd International Management Conclave. And for the theme unveiling, we've got something dramatic, some little gimmick that will make our unveiling of the theme a little more interesting. And for that, may I request our board member, Ms. Shonali Paul, Mr. Rakesh Jain, Mr. Manwani, Mr. Ahuja, and Mr. Kailash Garg forward, please. They are all our very senior members, and it's a privilege to have them today to unveil the theme for the day. I'd request the team to hand over the remote. So here we unveil the theme for the 33rd International Management Conclave. Thank you so much. Please give a huge round of applause. So a little about the theme that you just saw, Innovating India Swadeshi Swabhavik Swanirmit. Every few years, we pause not to look outward for inspiration, but inward for understanding, like how we did some time back. But as business leaders, managers, entrepreneurs, and professionals, we often ask where innovation comes from. Today,
We believe it is an important task to ask a simpler, deeper question. What if much of what we are searching today for already exists within us, within our country, within our way of thinking? With that thought, I would like to share about the theme for the 33rd International Management Conclave, Innovating India Swadeshi Swabhavik Swanirmit. We at Indore Management Association believe that richness of India's indigenous inventiveness deserve to be championed and celebrated to a greater magnitude. The stories of entrepreneurs, leaders, managers, and grassroots innovators deserve to be told and further imbibed into the collective consciousness of India's professional fraternity. In our conclave, we invite our esteemed speakers to share success stories of the business models, management mantras, leadership sutras, venture ideas, and workplace practices that are Swadeshi. That is something that taps into the rich diversity of India's heritage, customs, methods, or rituals. Swabhavik, something that is inspired by Indian mindset, worldview, values, temperament, and peculiarities. And Swanirmit, something that is born, built, and blossomed in India. We will succeed in our purpose if, at the end of the day, the audience will take away a set of best practices and applicable ideas on tapping into a native novelty for excelling in their life and work. This conclave, therefore, is an invitation to listen carefully, to reflect honestly, and to rediscover the strength of ideas that are rooted in our own soil, shaped by our own realities, and capable of creating impact far beyond them. With this spirit, we are pleased to share the theme of the 33rd International Management Conclave and look forward to the conversation it will inspire around innovating India. That is Swadeshi, Swabhavik, and Swanirmit. Thank you. Shri Pundrik Goswami Ji Maharaj from Vaijanti Ashram, Vrindavan. Shri Pundrik Goswami Maharaj is a highly respected spiritual leader, known seamlessly integrating timeless Indian wisdom with modern leadership, management and life values. उनके विचार खास तौर पर आत्म नेतृत्व, सही निर्णय लेने की क्षमता और जीवन के संतुलन पर केंद्रित हैं, जो आज के प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत उपयोगी हैं. Through his contributions to value-based education and social initiatives, he continues to inspire individuals and institutions to lead clarity, responsibility, and the purpose. Today, on the occasion of 33rd IMA International Management Conclave theme unveiling, his presence truly adds depth and dignity to this esteemed platform. Ladies and gentlemen, please, without wasting any further time, let me all join welcoming Shri Pundrik Goswami Ji. Thank you. स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिसन्दनी तटुस्रुमद्रुमालुम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बिनी.
यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति श्रीराधिकामयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को राधे राधे। सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्क्लेव में खुद ही थोड़ा सा टाइम मिसमैनेजमेंट में हूँ। बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन समथिंग, सुबह से ही, बल्कि आज सुबह मुझे महाराष्ट्र एक धाम है वहाँ संत का, वहाँ गया, लौटा, फिर कथा बहुत लंबी चली, आप सब प्रतीक्षा कर रहे थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट का एक बहुत सफल सूत्र है पेशेंस। मेरे पिताजी कहते थे जिसमें पेशेंस नहीं होता वो पेशेंट हो जाता है। सो आई एम सो सॉरी, you have been waiting from so long and I shouldn't have done it, but after constantly speaking for 5 hours, I'm here to serve you all. Namaste ji. हम बहुत समय से मेरी इस इंदौर की यात्रा में यहाँ आने की योजना बनी हुई थी। मैं आदरणीय प्रतीक माहेश्वरी जी, नवीन खंडेलवाल जी और इंदौर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच कुछ कहने का अवसर दिया। जो टॉपिक मुझसे कहा गया है वो बहुत समय पहले, लगभग मुझे ऐसा लगता है देश के धर्म गुरुओं में दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव अ टेड टॉक, एंड दिस इज एट लीस्ट नियरली अराउंड नाउ 15 years। उस समय भारत में ज़्यादा टेड कोई जानता भी नहीं था, और दैट वाज द टॉपिक जो मुझे वहाँ बोलना था। और मुझे ऐसा लगता है कि IMA की ये सक्सेस है कि 15 साल बाद मुझे फिर से उस टॉपिक पर बोलने का अवसर दिया जा रहा है। रिलीजियसिटी टू स्पिरिचुअलिटी। हालांकि आते ही नॉर्मली जब कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो एक अच्छा खासा वेलकम, एक अच्छा खासा क्रम रहता है, जो यहाँ भी प्लान्ड था। मुझे आते ही इतनी जल्दी माइक दे दिया जाएगा मुझे भी नहीं मालूम था। ठीक है, ये भी उसको क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा, आज पूरी दुनिया में जो, खास भारत में जो धर्म की स्वीकारता है वो रिमार्केबल है, क्योंकि भारतीय चेतना मूलभूत रूप से धार्मिक है। वर्तमान समय में हर प्लेटफॉर्म्स में हम लोग प्रोग्रेसिव हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग इम्प्रूव्ड, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज तो is getting one of the top in the world. Education is on the way of improvements, but still,
जो हमने लास्ट पहले तो 1000 साल, फिर लगभग 200-250 साल, और फिर 20, 25, 50, 40, आप जिस पार्टी से उतना गिन लीजिएगा। वो जितने भी साल हम लोगों के बीते, और वो भारत जो टॉप ऑफ द लाइन था किसी ज़माने में, when it's come to literature, when it's come to technology, science, और हमें एक कगार पर लाकर छोड़ दिया गया। और फिर आप सब जैसे समर्थवान लोगों ने उस रिले के डंडे को फिर से पकड़ा, और जो व्यक्ति उस दौड़ में सबसे पीछे रह गए थे, बिल्कुल सबसे आगे पहुंचने की कगार पर हैं। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? वो है धर्म की। वर्तमान समय में हम हर लेवल पर पूरी दुनिया के सामने ऑन द कोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, अचीविंग है, नंबर 1 पहुंचने की स्थिति पर है। बट ये भी अभी उस स्तर तक घटित नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। आज भी हाईवे से 50 किलोमीटर ऑफ रोड चले जाइए, अभी भी ऐसे लोग इस देश में मौजूद होंगे जो शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि इंदौर नाम की भी कोई जगह है। मैं गांव में गया हूं, बैठा हूं, कई बार किसानों के साथ भी बैठा हूं, जवानों के साथ भी बैठा हूं, तो ऐसी स्थिति में जहां हमारे जितने सेक्टर्स हैं, either when it's come to medical science, education, infrastructure, the facility to do business, ये सब on the course of improvement हैं। पहले बहुत बदतर थे, बेहतर हो रहे हैं, शायद आगे बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसी चीज़ में हम किसी देश से 20 साल पीछे हैं, किसी चीज़ में हम किसी देश से 50 साल पीछे हैं, किसी चीज़ में 100 साल पीछे, किसी चीज़ में 2 साल पीछे, किसी चीज़ में लगभग पॉपुलेशन के मामले में लगभग बराबर हैं। पर चाहे कुछ भी हो जाए, जब इस देश का धर्म मंच पर बैठा है तो पूरी दुनिया श्रोता बनकर उसके सामने बैठी है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद का समय हो, चाहे वो महर्षि महेश योगी का समय हो, चाहे वो आचार्य रजनीश ओशो का समय हो, चाहे वो भक्ति वेदांत स्वामी जी का समय हो, जब इस देश ने किसी समय केवल धर्म को एक्सपोर्ट किया है, और वो ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी स्ट्रगल के बाद भी इस देश की आत्मा से खत्म नहीं हो सका। और आज का ये समय हमारे यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, बिजनेस में, प्रोफेशंस में, अभी 2 दिन पहले मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में एथिक्स ऑफ फर्स्ट बैच था एक यूनिवर्सिटी का, एथिक्स ऑफ मेडिकल साइंस, कि ये वाइट कोट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। भारतीय दर्शन वाइट कोट लर्निंग और सर्विंग के लिए पहनाता है, अर्निंग के लिए नहीं पहनाता। पर आज ये जो धर्म की स्वीकारता पूरी दुनिया में बनी है, ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पूरी दुनिया के सामने अलग पहचान देती है। भारत प्रपोजल देता है, आप प्रोफेशनल बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, अच्छे से अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट बनिए, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनिए, बहुत अच्छे व्यापारी बनिए। पर एक स्वीट प्रपोजल इस देश के पास है, इस सब के साथ आप थोड़े से स्पिरिचुअल भी बन सकते हैं। वो आपको पूरा बनाती है। हमारे यहाँ के वैल्यू सिस्टम को हमारे धर्म ने संभाला है। जब मैकेनिज्म
टेक्नोलॉजी जब किसी भी प्रकार की लेन देन इस सब के साथ एथिक्स और वैल्यूज ज्वाइन होते हैं, तब यह देश एक उद्घोष करता है गीता के सूत्र का, कर्म यज्ञ समुद्भवः। इंग्लिश का कोट बहुत फेमस है, वर्क इज वर्शिप। पर भारत ने उस वर्क इज वर्शिप को बहुत डिफरेंटली एक्सेप्ट किया है। आप वर्शिप केवल डेडिकेशन तक सीमित रहती है, पर हमारे यहाँ का एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ यज्ञ। कर्म को यज्ञ बनाइए। और जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ व्यापार को भी यज्ञ कहा, स्वाध्याय को भी यज्ञ कहा। इट्स नॉट जस्ट अ फायर सेक्रीफाइस, ऑफरिंग समथिंग इनटू द फायर। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेस इनकम, ये फाइनेंशियल यज्ञ है। भगवत गीता इसकी भी बात करती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेस इनकम, जहां इंफीरियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए प्रयास किया जाए और वो सुपीरियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ आइडियाज, थॉट्स, इनफैक्ट बहुत सारे बिजनेस एंड प्रोफेशंस को शेयर कर सके। इसको भगवत गीता प्रोफेशनल यज्ञ कहती है। एक कॉन्सेप्ट ऑफ यज्ञ जहां घी की आहुति गिराई जाती है। घी इज द फाइनल प्रोडक्ट। मिल्क का सबसे अंतिम प्रोडक्ट घी है, उसके आगे फिर कुछ और बढ़ा नहीं जा सकता। घी केवल ऊर्जा का काम करता है, एनर्जी, फिजिकल एनर्जी भी देता है और रोशनी भी देता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अल्टीमेटली हमारे पास हमारी नेसेसिटीज, हमारे इन्वेस्टमेंट्स, इन सब के बाद जो भी कंक्लूजन है एंड में, वो आहुति की तरह समाज को ऊर्जावान बनाने का प्रयास करे। इसको हमारे यहां यज्ञ की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी विचारधारा भारतीय व्यापारी के भीतर कर्म यज्ञ समुद्भव की घोषणा करती है। मुझे पता है कि मैं इधर उधर परिक्रमा दे रहा हूं, पर आप सबके बीच में अपने धर्म की कुछ जगह बना रहा था। जिस विषय को मेरे सामने रखा गया, रिलीजियसिटी और स्पिरिचुअलिटी, ऐसा मुझे इंस्ट्रक्शन मिला कि आई शुड टॉक ऑन दिस। पहली बात मैं आपसे एक कहूं कि ये दोनों शब्द वेस्टर्न थॉट्स हैं। ये दोनों शब्द वेस्टर्न थॉट्स हैं। बहुत समय पहले मैं अबू धाबी में था, तो एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस थी। वहां मेरे सामने एक प्रश्न उठा कि फलाना धर्म फलाने समय से फलाने व्यक्ति के द्वारा शुरू हुआ। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। इस्लाम इस समय शुरू हुआ, क्रिश्चियनिटी इस समय शुरू हुई, और व्हाटएवर। तो आपका ये हिंदुइज्म कब से शुरू हुआ? अब ये सबसे खतरनाक प्रश्न है। तो सबसे पहली बात ही मैंने उनसे ये कही दैट इट्स सच अ वेस्टर्न क्वेश्चन फॉर अ इंडियन थॉट। सच अ वेस्टर्न क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उनसे कहा कि उत्तर देने से पहले मैं एक प्रश्न आप सबसे करना चाहता हूं। मैंने कहा, ये बताइए, साइंस को किसने शुरू किया? आज का बंदा लॉजिक देता है, आई डोंट बिलीव इन व्हाटसोएवर, बट आई बिलीव इन साइंस। नाउ व्हाट द हेल इज द साइंस? प्रश्न मेरा यह है कि साइंस को शुरू किसने किया? जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा, उस दिन मैं बताऊंगा कि इस धर्म को भी किसने शुरू किया।
तो वो एक दो जना बोले फिर तो 4-5 साल बाद फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने कहा लीव इट, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज अ कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन in the process of science. There's a constant contribution. एक thought आया, somebody declared कि it's all about atoms. ये solidify होकर हमारे सामने कुछ भी चीज को manifest करते हैं. And this was decided for such a longer period of time. The least thing is atom. Then somebody else came and said, no, there would be further divisions. Positrons, neutrons, and electrons. Then there are further divisions. So, as soon as the science is growing, there's a constant contribution to make it more and more relevant, more and more useful. ये contribution न्यूटन के समय हुआ, फिर ये कंट्रीब्यूशन आगे चलकर एल्बर्ट के टाइम हुआ, और एवरी डे कोई ना कोई नोबेल प्राइज इस कंट्रीब्यूशन में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तो दुनिया में ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि पता नहीं अमेरिका पहली बार चंद्रमा पर गया भी था कि नहीं गया था। अब 2 जने गए, कह दे हम हो आए। कौन बैठ के इतना झंझट करे कि सच में गए थे? कोई कहता झंडा हिल रहा था पीछे। कहते चंद्रमा में हवा चलेगी क्या? अब जो कह रहा है कि हवा चलेगी नहीं चलेगी, वो भी नहीं गया कभी। ओहो, एक बड़ी मुझे प्रसन्नता है कि दिए बुझने से पहले मैं आ गया। अभी मेरी नजर पड़ी है, चल तो गए थे, ठीक है, रोशनी थी, तभी मुझे घी और दिया याद आ रहा इतनी देर से। So there is a constant contribution on the course of science, and it will keep on upgrading. Keep on upgrading. AI आ गया, communications आगे बढ़ गए, आगे कहाँ तक चला जाएगा कुछ मालूम नहीं। Knowledge भी मशीन, थोड़े दिनों पहले कोई एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर पता नहीं कौन सी चिप लगा के यहाँ बैठा था, पूरी दुनिया झंझट कर रही थी, पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर आया, पता नहीं ब्रेन रीडिंग ले रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है फ्यूचर में ऐसी कोई चिप बने कि सारा डेटा ट्रांसफर। मतलब मुझे अंग्रेजी में बोलना तो एक चिप लगाई, इंग्लिश शुरू, थोड़ी देर बाद बिल्कुल गुजराती में बोलना दूसरी लगाई शुरू, इटालियन में बोलना तीसरी लगाई शुरू, और मुश्किल ये हो जाएगी कि प्रॉब्लम हुई भैया कल तक इंग्लिश बोल रहे थे आज कहाँ गई, फिर मालवी पे आ गया, बोले क्या बताऊं यार मॉल में गया था इंग्लिश चोरी हो गई। कोई ले गया चिप निकाल के। तो देयर इज एन कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। सिमिलरली जो वेदांत है, जो सनातन धर्म है, हमें समझना पड़ेगा देयर इज अ कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं, हजारों साल पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और हमारे शास्त्रिक परिभाषाओं में वाल्मीकि को साइंटिस्ट कहा जाता है। मुझे नहीं पता कभी आप में से कितने लोगों ने कभी कथाओं में रामायण की आरती की होगी, तो उसमें एक शब्द आता है वाल्मीकि विज्ञान विशारद, आरती रामायण जी की कीजय। क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एनाटॉमी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। जैसे दशरथ जी का जब शरीर छूटा तो, सॉरी मुझे टाइम बता दीजिएगा कब तक बोलना है, कि इतना जल्दी जल्दी शुरू हो गया कुछ पता ही नहीं मुझे। मेरे घर से फोन आ रहा था, मैं तो अपनी पत्नी को टेक्स्ट कर रहा था कि आई हैव रीच्ड, आई विल कॉल यू लेटर, आई डिडंट नो दैट आई हैव बीन कॉल्ड ऑन द स्टेज ऑलरेडी। सो तो
टू मच साइंस के कंट्रीब्यूशन से ही ऐसा होता है, अनकंट्रोल्ड कंट्रीब्यूशन। तो उसमें दशरथ जी, राम जी फॉरेस्ट चले गए थे एग्जाइल में, और अभी तक भरत आए नहीं थे। तो उतनी देर तक एम्बामिंग की जो मेडिकल साइंस की प्रोसेस है वो उस समय वशिष्ठ ने दशरथ की बॉडी के साथ की थी, जो एक विद इन इट सेल्फ इट्स अ मेडिकल अचीवमेंट। बलराम जी इज अ सैरोगेसी चाइल्ड। तो वाल्मीकि विज्ञान विशारद। तो वाल्मीकि जी ने उस समय उस जमाने में उस थॉट प्रोसेस से संस्कृत की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ रामायण लिखी, जिसको हजारों साल निकल गए। फिर ठीक 500 साल पहले तुलसीदास आए। द सेम स्टोरी, बट यू विल फाइंड मैसिव डिफरेंस। मैसिव डिफरेंस आई एम टेलिंग यू। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, एक बात बताऊं सबसे फेमस, कि वो जो लक्ष्मण रेखा वाली है ना फेमस बात, वुमेन एम्पावरमेंट चैलेंज करता रहता है इस बात को। भाई हम ही लक्ष्मण रेखा में रहेंगे, तू किस में रहेगा? तू रावण रेखा के भीतर रहना। इस पूरी लक्ष्मण रेखा का कोई वर्णन ही नहीं है वाल्मीकि रामायण में, कोई वर्णन ही नहीं है। एक परशुराम जी के विषय में हम कहते हैं, उसमें बहुत डिफरेंट है स्टोरीज। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, जैसे केवट कितना फेमस प्रसंग है रामायण का, पूरी वाल्मीकि रामायण में ही इज नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, जस्ट अ नॉर्मल रूटीन। So what I'm trying to say is that just before 500 years, the same story, then further updated, and there was a contribution to make it more relevant for the present world. The constant contribution has been happening when it's come to Indian philosophy, Indian thought process. In fact, I'm very sorry to say, for our Sanatan Dharma, I feel a bit painful when we use the word religion for the value system and a thought process which we all follow in this country. Sorry, I'm going a bit of an out of the box, but it's a very important thing to know. वेदों में धर्म के 4 व्याख्याएं हैं। धर्म का मतलब है कर्तव्य, धर्म का मतलब है गोल, गोल को भी धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब सूरज का धर्म है रोज प्रकाश देना। धर्म का एक तीसरा अर्थ है एथिक्स। मानव का यह धर्म है कि तुम पशु जैसा काम मत करो, वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स। और धर्म का चौथा स्वरूप है व्हेन इट्स कम टू द उपासना पद्धति, which consist of temples, consist of prayers, whatever. So a word religion is only relevant to the 4th section of the dharma. क्योंकि आप सेम चीज के लिए हमारे यहां कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे, सेम चीज के लिए। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी साधना है ऐसे माला लेकर जप करना। जप, जैसे प्लेन को रनवे चाहिए तो यू नीड अ माला, अ मंत्र टू चैनलाइज योर माइंड एंड देन यू आर इन ओपन स्काई। पर दूसरी तरफ कबीर कहते हैं माला फेरत जुग भयो फिरो न मन को फेर। दूसरी तरफ हमारे यहां कहते गंगा का पानी भी मिल गया तो मोक्ष मिल जाएगा। बुल्ले शाह कहते गंगा गया गल मुगदी नाई उथे 100 गोते खाई। बुल्ले शाह गल तइयों मुगदी जदों मैनू दिलों गवाई। आपको देखकर मुझे याद आया बुल्ले शाह। तो इस चीज को हमारा धर्म सब कुछ सिखा रहा है, उठना सिखा रहा है, सोना सिखा रहा है। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, पंचविद विभजति वित्तः। हमारे यहां फाइनेंशियल डिवीजन, पार्टीशन, प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है ये भी हमारे यहां मिलेगा। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ
रिलीजन और उपासना पद्धति, इट्स अ लाइफस्टाइल। धर्माय, सबसे पहला विभाग, देयर शुड बी 5 डिविजन्स ऑफ योर प्रॉफिट। द फर्स्ट डिविजन इज धर्माय। हम परोपकार में, कीरत करो, नाम जपो, भंड छको, नानक देव ने हमें 3 सहारे दिए, ये सब धर्म का ही स्वरूप है। सबसे पहले 1% विभाग हमारे अर्थ का धर्माय, धर्म में लगाइए। इतने तक नहीं, आप सोचोगे यार ये तो वही फिर रूढ़िवादी बात कह दी, पर कहा एक शुरू में लगा के फ्री हो जाओ भाई। फिर दूसरी बात कही यशसेर्थाय, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, फेम होना चाहिए, उसके लिए इन्वेस्ट कीजिए। पीपल शुड नो दैट देयर इज समवन हु हैज डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, और इस स्तर तक वो आदमी पहुंचा और अच्छा काम कर रहा है। पीपल शुड नो यू हैव अर्न दैट। कोई समस्या नहीं है। आज को बहुत शहर का समर्थवान व्यक्ति एक कार्य कर लेता है, बहुत सारे लोगों को उस कार्य को करने का मोटिवेशन मिल जाता है। कृष्ण गीता में अर्जुन को यही एक लॉजिक देते हैं, दैट यू आर अ रोल मॉडल टू मैनी, और तू अगर इस समय बीच में फाइट छोड़ के चला गया तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की फाइट छोड़ के चले जाएंगे, एंड यू विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल टू देम। डोंट डू दिस। धर्माय यश, एवरीबॉडी शुड नो यू, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छे काम में हमारी प्रतिष्ठा समाज में होनी चाहिए। हाँ, बुरे काम से प्रतिष्ठा जल्दी मिल जाती है, बात अलग है। हाथी सामने से सीधा जाए ना तो 2 अखबार छापेंगे, उल्टा जाए तो 200 अखबार छापेंगे। सीधी बात है। हम खुश हों। मैं कथा में कई बार कहता रहा, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है। वो दुनिया में सबसे कठिन है। तो यश होना चाहिए सामने वाले का, आप सुखी हुई, वाह। धर्माय यशसेर्थाय। थर्ड थिंग इज अर्थाय। अर्थाय मतलब एसेट। द थर्ड पोर्शन ऑफ योर प्रॉफिट should be invested for the future assets. अब बेस्ट एसेट इस समय क्या है वो तो आप ही मुझसे ज्यादा जानते होंगे। Information, one of the biggest asset one can have now. ये जमीन सोना सब छोटे लोगों की बात है। The data is the biggest asset. Then you can play around as much as you want. धर्माय यशसेर्थाय। अगली बात के काम आय। यही धर्मशास्त्र जो आपको वैरागी नहीं बना रहा, बता रहा है एक काम करो जो आपके मन में इच्छा हो। पूरे इंदौर की सबसे बेस्ट लोकेशन में आपका घर होना चाहिए, नो इशू। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी होनी चाहिए, नो इशू। और ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा अगर पहला पोर्शन हमने अच्छे काम में निकाला होगा। बात सही है? नहीं तो फिर हम गाड़ी कम चलाते, गाड़ी हमको ज्यादा चलाती। तो धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च। एंड द फिफ्थ पोर्शन इज फॉर योर फैमिली, फ्रेंड्स, जिसको आपको मदद करना हो। कभी गिफ्ट दिया, कभी किसी की हेल्प कर दी। पंचविध विभजति वित्तः। इस प्रकार हमें 5 विभागों में अपने वित्त का विभाजन करना चाहिए। ये वही बात धर्म कह रहा है। आई डोंट नो रिलीजन कहेगा कि नहीं कहेगा। रिलीजन शब्द केवल उपासना पद्धति तक सीमित है, पर धर्म शब्द केवल उपासना पद्धति तक सीमित नहीं है। ये मेरा धर्म ही है कि मैंने अगर वचन दिया है, फंस गया, फिर भी आज आकर आपकी सेवा करूं। ये आप सबका धर्म ही है कि आप यहां
मुझसे बढ़िया बोलने वाले लोग हो सकते हैं, पर इतने पेशेंस के साथ यहाँ बैठे सुन रहे हैं, डेफिनेटली 1 घंटा मेरा पेशेंस काम कर गया। ये दोनों चीजें अलग हैं। तो कल्चर, लैंग्वेज, culture consists of food, outfits. This is all culture. Culture, one of the biggest thing is then language. तीसरी चीज वर्शिप, और चौथी चीज फिलॉसफी। एक रिलीजन के भीतर ये 4 चीजें होती हैं। एक रिलीजन सबसे पहले एक कल्चर को स्टैब्लिश करेगा कि टोपी पहननी है तो ऐसी पहननी है, पाग भी लगानी है तो ऐसी लगानी है, पगड़ी पहननी है तो ऐसी पहननी है, स्कार्फ डालना है तो ऐसा डालना है। सीधी सी बात है। यही धोती है जो मैंने पहनी। अभी आते आते मैं थोड़ी जल्दी थी, 5 घंटे बोला तो ऐसे लपेटा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये धोती इस देश में लगभग 80 प्रकार से बांधी जाती है। उसी से पता चल जाएगा। ये मतलब भारतीय विज्ञान में धोती पहनना फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी, वर्शिप, घर, यही डिसाइड कर देता है। अब मेरी जो धोती की लांग है, अगर वो इतनी पीछे तक जा रही है तो उसका मतलब दक्षिण भारत में यही है कि मैं आई एम स्टिल इन सम फॉर्मल मीटिंग। और जब ये मेरे बिल्कुल कमर के सामने आ जाएगी, इसका मतलब मैं थोड़ा अब घर वालों के साथ बैठा हूं। और जब केवल घुटने तक पहुंच जाएगी, इसका मतलब सोने की तैयारी करो। फिर जब लांग लग जाएगी तो उसका अर्थ अलग है। एक ही वेशभूषा है। तो सबसे पहले कल्चर। तो धर्म बनता है उसी बहाने से। और आज हमें अपने मैनेजमेंट में उस वर्क को अगर वर्शिप बनाना है तो सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी कम्युनिटी में, अपने कोऑर्डिनेशंस में एक कल्चर को क्रिएट करना पड़ेगा। तभी तो वर्क वर्शिप बनेगा। एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा और वो कल्चर आपका ओरिजिनल होना चाहिए। बहुत आसानी से हम किसी दूसरे व्यक्ति की कॉपी कर लेते हैं। देयर इज अ न्यू टर्म केम, कॉर्पोरेट कल्चर। और हमने उसका एक मैकेनिज्म बना दिया, एक आउटफिट्स बना दिए, एक सिस्टम बना दिया, एक वे ऑफ टॉक बना दिया, एक मैनेजमेंट बना दिया। आई हैव नो इश्यू विद दैट। But why there should be a fixed form of a corporate culture when everyone in every firm an individual value system? दूसरे नंबर की बात, धर्म सरवाइव करता है लैंग्वेज के ऊपर। अरबी बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे तो पर्टिकुलर चीज होगी। आप पारसी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो पर्टिकुलर चीज है। हिंदी बोलेंगे, उसमें भी फिर प्रॉब्लम है, तमिल की हिंदी, फिर उसमें भी बात आएगी। संस्कृत बोलेंगे तो एक पर्टिकुलर बात है। इसलिए अगर किसी रिलीजन को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज के प्रति इन्फीरियरिटी को डेवलप कर दो। ये बहुत बड़ी बात है। आज दुर्भाग्य है हमारा, और मैं थोड़ा बहुत गांव से लेकर विदेश तक पढ़ा हूं। आपसे सच कहूं, एक बहुत एथनिक रिलीजियस फैमिली से आता हूं और बहुत कॉन्टेम्प्ररी स्टडी भी कर चुका हूं। मैं आपसे भरोसे के साथ कह रहा हूं, अगर केवल थोड़ी संस्कृत सीखकर अब भारत में उत्पन्न हुआ लिटरेचर, रिसर्च, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पूजा, इफ यू टॉक अबाउट लिटरेचर, रिसर्च, यहां जो जो काम हुए एरोडायनेमिक्स को लेकर, यहां जो जो काम हुए व्यापार को लेकर, क्या इनोवेशंस किया है व्यापार ने, टैक्सेशन को लेकर भारत में सब। आपको एक जानकर भागवत का बड़ा आश्चर्य होगा कि सब जानते जन्माष्टमी पर हम गाते नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, कृष्ण जन्म ले गए। तो कृष्ण जन्म का फेस्टिवल 6 days तक चला, भागवत पुराण में ऐसा वर्णन है। एंड लुक एट दिस, उसमें तीसरे दिन श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा उस इतने बड़े फेस्टिवल को छोड़कर, जिसका हम लोग
इतनी व्याख्याएं करते हैं, घरों में मनाते हैं, आपकी दादी मामी सब मनाती होंगी, वो उस फेस्टिवल को छोड़कर मथुरा जाते हैं और ये लिखा है कंस का टैक्स भरने के लिए। इतना एक्सप्लॉयटेशन था उस समय टैक्स के द्वारा, इसलिए कृष्ण ने माखन चोरी शुरू करी। द चोरी वर्ड इज द टर्म हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट बिकॉज इट वाज सो हाई, मोर देन 85%, मोर देन 85%। इसलिए रूथलेस राजा था। तो कृष्ण ने कहा मामा को ठिकाने लगाने पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा, बोले घर का अपना माखन अपना खाओ। इस हिसाब से केवल संस्कृत की अवेयरनेस आके अगर आप हमारे धर्मशास्त्र का अनुसंधान करेंगे, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, चाहे वो चाणक्य का अर्थशास्त्र क्यों ना हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्यों ना हो, विदुर की नीति क्यों ना हो, केवल इतना अध्ययन करके हमारे धर्मशास्त्र का अवलोकन करेंगे, आप अपने आप को पूरी दुनिया से 100 साल आगे पाएंगे। 100 साल आगे। प्रॉब्लम यह है कि हम 5000 साल से योग करते थे, किसी को नहीं पता था, पर जो उस योग में अमेरिका का आ घुस जाता है, योगा, निर्वाणा, तो सबको अच्छा लगता है। वी लव इंपोर्टेड थिंग्स, आई नो दैट। यहां स्वदेशी लिखा है इस पर ध्यान देने की बात है। आज हमारे यहां महाभारत में एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उस दिन मुझसे तन्मय क्वेश्चन कर रहा था, द पीपल हु आर बोर्न विद द सिल्वर स्पून, there's a section which is एक बंदे हैं जिनके पास they are have not, उनके पास कुछ नहीं है। Then there are second portion of the society, they have everything। पर एक नई चीज शुरू हुई है, हैव वाले भी हैव नॉट में है सब, पर सोचता है यार कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो अपनी लाइफ में हमने अगर सुख को डिसाइड कर लिया कि ये चीज सुख है, तो हम उसके लिए एफर्ट करेंगे और वो है तो सुखी हो जाएंगे। ये उपदेश विदुर ने किया है धृतराष्ट्र को। मैं जल्दी से आपसे कह ही देता हूं जब मौका लगाए तो। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। श्लोक याद करने लायक है। पहली बात के अर्थागमो मतलब आपकी लिवलीहुड के लिए आपके पास एक फिक्स्ड एसेट्स तैयार हैं। अगर अपना काम जो भी 2, 5, 10, 20, 50 लाख चाहिए महीने का, साल का 10-20 करोड़ चाहिए, उसके लिए अगर हमारे एसेट्स तैयार हैं और नहीं है तो हमें उसको तैयार करने के लिए एफर्ट करना चाहिए। यू शुड डिक्लेयर योरसेल्फ हैप्पी। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, इफ यू आर हेल्दी ऑन द डेली बेसिस। आज अपन उठे शाम को, यार आज कोई गैस नहीं, कोई सिरदर्द नहीं, कोई मसल पेन नहीं कोई हेडेक नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई हार्ट बर्न नहीं, झंझट भी तो कम नहीं। यू शुड डिक्लेयर योरसेल्फ हैप्पी। नित्यम अरोगिता च। तीसरी बात, प्रिया च भार्या। पति पत्नी के संबंध में अगर प्रेम है, मतलब पति पत्नी जरूर है, अच्छी बात है, पर प्रेम है कि नहीं। प्रेम होना अलग बात है, शादी होना एक सिस्टम है। प्रेम तो ऐसी वस्तु है शुगर की तरह, जिसमें घोल दोगे वो स्वादिष्ट हो जाएगी। अगर ऐसा है, आई डेफिनेटली बिलीव कि बहुत दुर्लभ होगा पर अगर है तो यू शुड डिक्लेयर योरसेल्फ हैप्पी। प्रिया च भार्या। और चौथी चीज तो सबसे गजब की है, प्रियवादिनी च, एक्सप्रेशन ऑफ लव। एक चीज होती है प्यार तो बहुत है,
बस इतना ही बहुत है। प्यार तो मतलब ऐसा है कि मैं तारे तोड़ लाऊं, चंदा तोड़ लाऊं, चाहे नारियल न टूटे उस पर एक, बस इतना ही बहुत है। Don't you know I love you? She's saying that really I don't know. Tell me that you do. He's saying tell me that you do. A loving expression whenever there's an occasion. It can be gifts, it can be whatever. We do that. Definitely do that. But it should be with the pleasure. डर से नहीं कि भाई इस बार अगर करवा चौथ खाली गया। पत्नी बोली पति से कि मुझे वो फोन खरीदना है, सन्यासी फोन आया है ये वाला। पति बोला ना ना ना, बोले करवा चौथ रखा, बिल्कुल नहीं। बोले व्रत तोड़ूं क्या? उसने कहा चल, तोड़ दिया तो मैं ही गया ऊपर। पत्नी बोली देखा, पति बोला पति देखा, पति परमेश्वर होता है, पूजा की जाती है उसकी उस दिन। बोले ऐसा कुछ नहीं। पत्नी बोली सुन, एक बार उल्लू ने लक्ष्मी जी से शिकायत करी, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करता हूं, इतना ध्यान रखता हूं, आपकी इतनी पूजा होती है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, कहीं बैठूं तो पत्थर मार के और भगा देते। लक्ष्मी जी बोले ऐसी बात है तो मुझसे पहले तेरी पूजा होगी। बोले मेरी दिवाली को होती है, तेरी करवा चौथ पर होगी। मैं ये नहीं कह रहा पति बेचारे उल्लू हैं, लक्ष्मी जी ने वरदान दिया था। प्रियवादिनी च, अगली बात की वसश्च पुत्रो। हमारी संतति अगर हमारे इंस्ट्रक्शन का रिस्पेक्ट करती है, यू शुड डेवलप द रिलेशनशिप द वे। वसश्च पुत्रो, संतति अगर एटलीस्ट ठीक है, लॉजिकल डिस्कशंस आर इंपॉर्टेंट। कई बार यंग जनरेशन बहुत रेलेवेंट होती है। आप कृष्ण की लीला में देखिए, एक कथा आती है, गोवर्धन जब कृष्ण ने उठाया तो एक रिचुअल था ब्रज में जो हजारों साल से फॉलो हो रहा था कि उस दिन इंद्र की पूजा होती थी। कृष्ण ने कहा ना, वी शुड चेंज इट। ठीक है वो बारिश कर रहा है, बट ये बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि यहां नेचुरल वायबिलिटी है, वी हैव नेचुरल रिसोर्स इन अ फॉर्म ऑफ माउंटेन, उसको रिजर्व करो। और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने उसको पॉइंट ऑफ वर्शिप बना दिया, परिक्रमा बना दी। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, गोवर्धन के ऊपर ही विला कट रहे होते आज के टाइम। वो अरावली तो बेचारी प्रॉब्लम में चली रही है, एंड टेक्निकली स्पीकिंग गोवर्धन इज अ पार्ट ऑफ दैट अरावली हिल्स। छोड़िए, मैं क्या ज्यादा बोलूं, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल। किसी ने मुझसे पूछा आप किस दल के हो, मैंने कहा मैं तुलसी दल का आदमी हूं, माला फेरता हूं। वसश्च पुत्रो, पूरे व्रज ने कृष्ण का इंस्ट्रक्शन माना। एजेड भी पीछे चल रहे हैं और 8 साल के कृष्ण आगे चल रहे हैं। और अंतिम बात कही, अर्थ करी च विद्या, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जीवन के डाउनफॉल में, डार्केस्ट पीरियड में, आपके पास कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए जो हमारे सर्वाइवल के लिए हेल्प करे। It can be music, it can be sports, anything. महाभारत में अज्ञातवास के समय पांडवों को उस टैलेंट ने बचाया। जैसे भीम को खाना ही नहीं, बनाना भी आता था। जैसे द्रौपदी को बहुत अच्छा श्रृंगार करना आता था। जैसे युधिष्ठिर को बहुत अच्छी सजेशंस देना आता था। जैसे अर्जुन को बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी था वो, नॉट जस्ट वॉरियर, इसलिए उसने बृहनलला बनकर संगीत सिखाना शुरू किया। अर्थ करी च विद्या, अ टैलेंट विच कैन हेल्प अस, जो बिल्कुल सब खत्म हो जाए कि कुछ चल ही नहीं रहा इस टाइम। एक बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका के पास छोटा सा देश है, वन ऑफ वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ माइंड, बहुत मेरे प्रेमी हैं वो, अब तो बहुत वृद्ध हो गए। मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलके। ही इज लाइक द टॉप मोस्ट पर्सन इन द कंट्री, टॉप मोस्ट, डेफिनेटली गुजराती भाई है,
टॉप मोस्ट इन द कंट्री। उन्होंने मुझे एक बात कही कि जिंदगी में मेरे साथ 3 बार ऐसा हुआ कि मैं लिटरली बैग एक कपड़ा लेके घर से पैदल बाहर गया हूं, यहां तक गिर गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द कंट्री टू। बड़ा अच्छा क्लासिकल गाते हैं। तो मुझसे कहते हैं बिजनेस इज माय पैशन एंड म्यूजिक इज माय अर्निंग। आज भी जो मैं अपना घर चलाता ना, मजे की बात है, कहीं जाके गाना आना गाते हैं, कहीं जाके गाना वाना गाते हैं, उसका पैसा अच्छा खासा लेते 10-5 लाख रुपया। हाँ, खरबपति आदमी है, बोले ये सब में उस व्यापार से 1 रुपया नहीं लेता। और जो संगीत से 5-10 लाख रुपया लेते हैं, और बोले उससे घर चलाता। थोड़े दिनों पहले उन्होंने कॉन्सर्ट किया, अब तो बहुत एज हो गई, और सबसे बड़ी फीस रखी। बोले क्यों, पता नहीं अब महीने में 1 ही कॉन्सर्ट करूंगा, दाल रोटी कैसे चलेगी। मजा आ गया। अर्थ करी च विद्या। तो मुझे क्लोजर कंस्ट्रक्शन मिला है, दिए भी 3-4 कम हो गए हैं। 2-3 बातें रिलीजियसिटी और स्पिरिचुअलिटी के मैंने कुछ पॉइंट्स जल्दी से नोट डाउन कर लिए थे। आई कैन नॉट एक्सपेंड देम दो। रिलीजन में फॉलोअर्स होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में फेलोशिप होती है। फॉलोअर्स और फेलोशिप में बहुत अंतर होता है। फॉलोअर्स मेजरली ब्लाइंड होता है, फेलोशिप आई ओपनिंग होता है, दूर तक देख सकता है। रिलीजन आउटर नेटवर्किंग है, स्पिरिचुअलिटी इनर वाईफाई है। ये इनर नेटवर्किंग है, अलाइनमेंट ऑफ योर माइंड, intellect, your body and your soul. Just like there are many cars parked outside, starting from 10 lakhs to maybe 3 CR. सबका एरोडायनेमिक्स, मैकेनिज्म, फिजिकल बॉडी डिफरेंट है, इंजन डिफरेंट है, ड्राइवर डिफरेंट है, फ्यूल सब में वही 100 रुपए वाला है। चाहे 2 करोड़ की लिया, चाहे 20 लाख की लिया। अलाइनमेंट क्या है? रोल्स रॉयस की बॉडी के भीतर मारुति का इंजन काम नहीं करेगा। युवा शरीर रोल्स रॉय की बॉडी है, पर आज का बंदा सोच रहा है बस केवल इंस्टाग्राम की 2 रील, मारुति का इंजन लगा के बैठा है। कैसे काम चलेगा? फिजिकल बॉडी, इंजन, और फिर तीसरी बात ड्राइवर। ट्रैक्टर का ड्राइवर दे दोगे फरारी वाले को, खेत में उतार देगा। और सबसे 4th चीज, ये अलाइनमेंट। सो इनर नेटवर्किंग। रिलीजन कई बार आउटर नेटवर्किंग है, डिविजन्स किए जाते हैं। आप यहां तक जाओगे, आप पुजारी हो, आप यहां तक हो, आप पंथी हो, आप ग्रंथी हो। और ये इनर नेटवर्किंग है। रिलीजन में इंफॉर्मेशन होती है, स्पिरिचुअलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। रिलीजन के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। सनातन धर्म केवल रिलीजन नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं, इसलिए हर आदमी को अधिकार मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने का। ये सब चीजें हमारे, मुझे फिर से याद आ रहा है, आई जस्ट सॉ द टाइम, बहुत अच्छा टाइम हुआ 1033। इसीलिए मैं बहुत इंस्टेंट, एकदम जैसे आप अभी अभी सुबह सुबह ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ रहे हो, और दौड़ते 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 बस जैसे ही आपने उसको स्टॉप किया, उसी समय प्रधानमंत्री का फोन आ जाए। कैसी स्थिति होगी यार, तो सांस तो लेने दे भाई। मैं भी बिल्कुल ट्रेडमिल से दौड़ कर आ रहा था, तो मैंने सांस लेते लेते जो कह सका, आपने बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। May I request Mr. Sushil Dubey, member IMA,
to present a memento to Honorable Guruji. बहुत ही अच्छा होगा. धन्यवाद धन्यवाद. So are we doing question answer? No. Yes, we do. Just after a moment. Naveen? May I request Sachin Gaurji, VP Alliance Insurance, for a planter presentation, please. Sachin Gaurji. And finally, may I call upon Mr. Rishi Nandikar for honoring Guruji with a shawl, please. As we move towards the conclusion of this meaningful evening, on behalf of Indore Management Association, I extend my sincere thanks to Shri Pundrik Goswami Ji Maharaj for being here with such a meaningful speech you had today in such a rush hour. I know that you had a very busy day today और उसके बाद भी आपने इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और उसके अलावा आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने इतनी इत्मीनान से स्वामी जी का इंतजार किया और एक अच्छे श्रोता के रूप में अंत तक आपने पूरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.